Welcome back. Ladies and gentlemen, you have been a wonderful audience. May I request you to please settle down quickly. Those who are coming from the refreshments, kindly settle down as we will soon begin the panel discussion. जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का यह समारोह सात्विक आहार पर है। तो वापस आते हैं आहार पर। भगवत गीता में व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुरूप आहार की 3 श्रेणियों का वर्गीकरण वर्णित है। ये श्रेणियां हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक। मनुष्य के जीवन का इन तीनों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। काल के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, दृष्टिकोण बदलते हैं। तो आज के आधुनिक युग के परिप्रेक्ष्य में सात्विक आहार को हम कितना अपना सकते हैं और किस वैज्ञानिक आधार पर व्यवहारिक रूप में अपना सकते हैं, आइए इसी बारे में चर्चा करते हैं इस पैनल डिस्कशन में। To begin the panel discussion, we would first like to invite on stage the panel moderator, Ms. Mamta Bisht. Ms. Mamta Bisht has been dedicated to teaching yoga for over 8 years, working with schools, institutes, and corporate settings. She teaches yoga courses such as postgraduate diploma in yoga therapy and the certification course in yoga at Kavalyadham College in Lonavala. We would now humbly invite our first panelist, Dr. Kushan Shah, Senior Naturopath, Nisargopchar Ashram, Uruli Kanchan. Dr. Shah is a seasoned professional in the field of naturopathy, yoga, nutrition, and health management with a diverse academic and practical background. With a deep commitment to holistic healing, Dr. Shah has successfully treated thousands of patients, offering expertise in naturopathy and yoga for preventive care and wellness. Let us now welcome our second panelist, Dr. Harish Shetty. With more than 12 years of experience in naturopathy, Dr. Shetty is co-founder at Ahar Veda, whose foundation is built on the belief that the body is capable of healing itself. He is also the co-founder of the Amba Gopal Foundation, a charitable organization committed to bringing economic, medical, and financial relief to people who are unnoticed or unreachable. One of the noticeable initiatives of this foundation is HOSH, which stands for Helping Our Society Heal, to influence policy for clean air, clean water, and clean food. Our third panelist is founder chairman of ICE College of Hotel Management, Mr. Tejinder Singh Sabharwal, a visionary leader and entrepreneur in the field of education and hotel management, the head of the Bhai Gurudas Educational and Charitable Trust, which manages ICE College of Hotel Management. Mr. Sabharwal has been instrumental in transforming hotel management education. May I please request the Yogi Chef contestants to please reach out to the main gate and meet Dr. Apurva. If the participants of Yogi Chef are here in the pandal, please meet Dr. Apurva near the main gate. Let us continue. For felicitating our esteemed panelist and moderator, we humbly invite Mr. Nishant Jain on the stage. Mr. Jain is a yoga enthusiast and an entrepreneur who has led diverse business related to environment protection, industrial solutions, and consulting for the last 25 years. He was recognized by the Economic Times as the promising entrepreneur of India for being a leader in bringing disruptive change. Mr. Jain is also the project director for the ML Paintse Center for Cancer Survivors and Lifestyle Conditions at Kevalyadhama and a core team member of the Kevalyadhama Ashram Trust. May we now please have the souvenirs here for the felicitation. Dr. Kushan Shah. Ladies and gentlemen, please have the round of applause coming for this felicitation ceremony.
Next, may we have souvenirs for Dr. Harish Shetty. May we have souvenirs for Mr. Tejinder Singh Sabharwal now. Thank you, sir. Thank you, Mr. Jain. Now, before we hand over the reins to Ms. Bisht, we would like our audience to know that the Q&A session will happen towards the end of the panel discussion. So we will accept the questions for the speakers in written form only. We request our audience to write down your questions on a piece of paper and hand them down to one of the volunteers in the audiences. And please do not wait for the session to get over. Hand your questions to the volunteers as soon as you come up with them. They'll be standing in the aisle in a short while. Over to you, Ms. Bisht. Thank you, Shania, and namaste, everyone. And it's really nice to have some learned and expert people from the domain of food and management and study, and also the experiential aspect of the food today amongst us. To begin this session, we thought it's only wise just to have a quick understanding of the very word sattva, as we have been using this word again and again. It has been driven from the very concept of triguna, where we are saying that this very nature itself is the manifestation of three modalities, sattva, rajas, and tamas, while rajas signifies the reaction, reactivity, vigor, action. Tamas signifies inertia, maybe dullness, maybe ignorance, maybe the groundedness at time. And while sattva, being the supreme amongst the all, signifies balance, harmony, purity, intelligence, and as our scriptures say, sattva is the element which takes us to the liberation, the ultimate goal of our Indian philosophies. Though maybe liberation or the moksha in today's context could be different, the perspective could be different, but if you take the yoga, food as the component of raising sattva within us has been a very important aspect. If we take Hatha Yoga Pradipika, it says, Susnigd madhurascha charthansh vivarjitaha bhujyate shiv sampritai mitahar sa uchyate. That means a food which is fluid, which is lubricated, which is naturally sweetened, which is not eaten on full heavy stomach, and moreover, which is taken with a sense of offering that food to the very God, to the very Lord within us, is the mitahar, is the conducive food that we should have. But in today's time, does that definition still make a sense to us? What is the utility of this, and what is the significance of that? And that is the very theme for this panel discussion. The Sattvic Ahar, its significance in the modern time, its utility, practicality, and the scientific aspects behind it. Is it still relevant to it? So just to open this discussion, may I invite first Dr. Kushant Shah for his opening remark with his expertise. Please, sir. Namaste. Thank you all of you to invite me, especially the Kaivalya Dham team and the contacted person, I think so, Dr. Ritu Prasad and Pandey sir. He did well. He just reminded me
like anything that you have to come. And yeah, so this subject, I will try to explain about the scientific approach, because we all know about the sattvic food. Sattvic food, sattva. What is sattva? What is sattvic? Sattvic means pure, which boosts your immunity. Right? Where is sattvic food? And where we get this sattvic food nowadays? I think so, none of the place except that internal rural areas where the organic farming can be done. So, what sattvic food means? Which satisfied our souls, which satisfied our hunger, or which satisfied our appetite, right? So, what is appetite? Each and every hour, see, if I am treating patient, I am treating lots of patient, almost the Nisargupchar ashram treating 5,000 patients or 6,000 patients every year. So when we take a history of the patients, we found that they all are having too much of food. They don't know what to eat, what not to eat. Even though they know, they are unable to follow the rules. That is the problem. And that creates a lifestyle disorder that nowadays creates a DNA based lifestyle disorders, so which carries the next generation. Now, regarding, I am just seeing the crowd is much more younger crowd we have nowadays. So, and initial speakers, the chief guest, Sanjeev Kapoor ji, he mentioned about the organic food and some channelizing of the food, how to prepare, how to do, what our mind says about food. That is all scientific way we can manage. So, I'm starting the lecture now. What is sattvic food? Because I mentioned these all parameters which under the umbrella of sattvic food. Sattvic food is not only about the exception of Rajasic and Tamasic. Okay, sattvic is very different. What we have in a daytime, what we have in the night time, what we have in a presence of sun, what we are having in presence of moon, this all concept comes under the sattvic food. So I am starting with a very basic concept of sattvic, then we'll go for the scientific approach. Sattvic food is what the vegetables, what all fruits having a much amount of water and the minerals, and which has not fried one and not used as a we can say as a proper understanding of the ingredients like minerals, vitamins and micronutrients. Nowadays we found that micronutrient deficiencies in our body like B12 and vitamin D, right? Every third person has a deficiency. So in that case, what we appropriately give to the advice to the patient, at least they should have a proper diet with good amount of hydrated food. Hydrated food, what is hydrated food? Which contains good amount of water and the minerals, right? Abhi, I'll make sure that I can speak in Hindi also a little bit. Okay. So, जब हम हाइड्रेटेड फूड की बात करते हैं तो हाइड्रेटेड फूड हमेशा वाटर और मिनरल्स से युक्त होने चाहिए, लुप्त होने चाहिए. और ये जब हाइड्रेटेड फूड हम मार्केट में देखते हैं उसमें क्या क्या आता है, जैसे कि फ्रूट्स आता है, ग्रीन वेजीज आती है और पल्सिस आते हैं एंड दालें स्प्राउट्स आते हैं. दिस ऑल आर द सात्विक फूड. इसमें सिर्फ हमें ये समझने की कोशिश करनी है, बहुत ग्रॉस लेवल पे समझने की कोशिश करनी है कि बिकॉज यू पीपल आर नॉट गोइंग टू ट्रीट द पेशेंट. आप अपने लिए नॉलेज बढ़ाने के लिए है यहाँ पे. तो जब हम सेल्फ अवेयरनेस के लिए है तो हमें दो चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा. एक चीज़ है जो हम खाते हैं वो वेजिटेरियन खाना होना चाहिए सबसे पहले. दूसरा, ये जो खाना है उसमें सबसे ज़्यादा आपको फाइबर
हाइड्रेटेड यानी पानी वाली चीज़ें जिसमें फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिस है। एंड थर्ड पॉइंट कि जो भी आप दालें खाते हैं उसको प्रॉपर बॉइल्ड करके खाना चाहिए। ओवर बॉइल्ड करके खाया तो भी चलेगा, कच्चा होगा तो दैट कंटेन्स अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड प्रोटीन विल्स क्रिएट्स अ डाइजेस्टिव ब्लोटिंग्स एंड फ्लैचुलेंस, एसिडिटी एंड समथिंग डिफरेंट वे ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम। सो यहाँ पे जो भी हम बात कर रहे हैं, दिस इज ऑल लिटल बिट इंफॉर्मेशन ऑफ द सात्विक फूड। माई पॉइंट इज वॉट इट गिव्स यू अ scientific way cellular changes in the sattvic by the sattvic food. What is cell? We know about cells, right? कोश के बारे में सबको मालूम है. What is कोश? Our body made up by the cells. Multiple cells creates a tissues. Multiple tissues creates an organ. Multiple organ creates an system, and multiple system built our body, right? तो जब हम आयुर्वेद में, योग में, नेचर क्योर में जब सात्विक फूड की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें सेल्यूलर सिस्टम पे जाके ट्रीटमेंट करनी होती है, ना कि कंप्लीट बॉडी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। बॉडी ट्रीटमेंट अपने आप होती है जब आपके सेल्स रीजनरेट होते हैं। सेल्स के अंदर क्या होता है? ओके, सेल्स के अंदर होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया। ओके, the some cells has a mitochondria, the other cells has a nucleus with the mitochondria. So जब cells में mitochondrial development है, that carries the DNA जो हम अभी खाते हैं। Now see, I'll give you one example. अभी पिछले 10 साल के अंदर हमें साइंटिफिकली ये देखने को मिला है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जिसमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, पैरालिसिस है, या फिर कोई भी प्रकार के ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसमें आर्थराइटिस है एंड सम काइंड ऑफ एलर्जीज। ये जिस तरह से बढ़ रहे हैं दैट चेंजेस अवर डीएनए एट द माइटोकॉन्ड्रियल लेवल। जब वो चेंजेस हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट जनरेशन को, तो दैट जनरेशन विल सफ़र विद द other or the same kind of diseases because of lacking of our awareness, not by their awareness. So what is our awareness? जो हम खाना खाने वाले हैं उसमें जो मैंने बताया हाइड्रेटेड फूड खाना है, जिसमें सेल्यूलर स्ट्रक्चर में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा जाए, और जो भी न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा जाएगा वो न्यूट्रिएंट्स हमेशा दूसरे सेल को रेप्लिकेट करने में मदद करेगा। सी, हम यहाँ पे सोचते हैं कि हमारी एज 60, 70, 80, 90 तक हम जीने वाले हैं, बट जैसे 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 हम बड़े होते जाते हैं हमारे बाल झड़ने लगते हैं, हमारे दांत गिरने लगते हैं, हमारी स्किन जो फ्रेशनेस ऑफ स्किन रहती है, जो ग्लो रहता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सेल्यूलर डीजनरेशन, इट्स नॉट अ रीजनरेशन। जब सेल्यूलर डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा तो आपका एज हम वापस नहीं ला पाएंगे, लेकिन आप अपनी एज को आगे बढ़ा सकते हो विद द हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट अ लॉन्गेटिविटी। लॉन्गेटिविटी इज़ अ डिफरेंट पार्ट। तो जब सेल्स की बात मैं यहाँ करने आया हूँ, जो साइंटिफिक अप्रोच है उसमें जब न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रियल डेवलपमेंट प्लस डीएनए, ये जब हम इम्प्रूवमेंटल रीजनरेटेड पे लाएंगे तो ही हम आगे की जनरेशन और खुद के लिए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को ट्रीट भी कर सकते हैं। इवन वी हैव ट्रीटेड सो मेनी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बाय डूइंग दिस थिंग्स ओनली। कैसे? ओनली गिव अ फूड लाइक अ फ्रूट्स, लाइक अ वेजिस एंड स्टॉप ग्रेन्स, कंप्लीटली स्टॉप ग्रेन्स। जैसे ही हम अनाज बंद करते हैं, इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस जो शरीर में, कोश में आने वाली क्रिया है जिसको हम सूजन बोलते हैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में, वो कम होने लगती है। जैसे जैसे वो कम होने लगती है, सेल्यूलर रीजनरेशन विल स्टार्ट फास्ट। दैट रीजनरेशन रेप्लिकेट द हेल्दी सेल्स, द हेल्दी सेल रेप्लिकेट द टिश्यूज, ऑर्गन्स, सिस्टम एंड बॉडी। नाउ हम काफ़ी सारी थेरापीज़ आजकल सुनते हैं। यू हर्ड अबाउट सम PRP थेरापीज फॉर द हेयर ग्रोइंग, राइट? मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी पॉपुलर है। हाउ इट वर्क्स? द स्टेम सेल्स, द प्लाज्मा ऑफ इट वी कैन इंसर्ट डायरेक्टली टू द हेयर। ओके, दैट विल वर्क सिंस हाउ लॉन्ग? 6 months to 12 months।
उसके बाद जब आप वापस सेल्यूलर डिजनरेशन पे आ जाओगे, आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएंगे. द सेम वे ऑटो इम्यून थेरापीज, lots of autoimmune injections are prescribed in the name of, I can say the name also, like omalizumab, benralizumab and all. That autoimmune problems can be treated by the sattvic ahar. The only therapies by the diet and yoga and pranayam. How the yoga helps in this? Oxygen. What is the basic component of the life? Oxygen and water. Have you ever try only on oxygen and water except food? That's a fasting. Okay, no food at all. Once you start some fasting, accept the food, body will regenerate and heals itself naturally. The same way, if you take little amount of food like only veggies and the fruit, body start to heal itself in the cellular level, and which is called as a autophagy. And once we start with the autophagy, the body reacts as a lightness of the body, first characteristic. The second characteristic will be your sleep will be improved. Third characteristic will be the stress will gone. And fourth characteristic, your digestive system may improve like anything. Anything. So यहाँ पे जो भी लोग हैं, आप सब आए हैं, मुझे सुन रहे हैं. आई डोंट नो कितने लोग कॉन्सेंट्रेशन से सुन रहे हैं, बट मैं प्रयत्न ज़रूर ये करूँगा कि आपको मैं सिर्फ सेल्स समझा पाऊँ, क्योंकि जब आहार की बात आती है, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द टिश्यूज़ एंड द सेल्स इन अ बायोलॉजिकल बैकग्राउंड. वात पित्त कफ के लिए हम बात कर सकते हैं, बट सेल्स पे बात करना आवश्यक है, क्योंकि वो बायोलॉजी स्टूडेंट्स के बारे में है, और हम आज की जनरेशन को वात पित्त कफ से कन्विंस कर सकते हैं, बट दे नीड अ प्रूफ फॉर इट. और वो प्रूफ हमें माइक्रो लेवल पे, माइक्रो बायोलॉजिकल लेवल पे करना चाहिए. सो लास्ट 2-3 minutes I will take and I'll complete my lecture. First point, I'll just make sure 3 points you should remember. First point is hydrate your body properly. Second point, in comparison of the grain, you take 4 times of veggies and the fruit in a diet in a daily basis. Like एक चपाती हम खाते हैं तो 4 बाउल ऑफ सब्जी, 4 बाउल ऑफ सूप, और आपके 4 बाउल, छोटे बाउल 100 ग्राम्स ऑफ बाउल के फ्रूट्स होने चाहिए. हम करते हैं उससे बिल्कुल उल्टा और विरुद्ध, कि हम खाते हैं रोटी सब्जी दाल चावल ज़्यादा. फ्रूट्स हम कभी पूछते हैं तो बताया जाता है एक फ्रूट दिन में हम खा लेते हैं. दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर योर सेल्स. यहाँ पे हमें एक चीज़ प्रॉपरली करनी है, वो है अवेयरनेस. जितने आप ये मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, अगर उसको सिर्फ आप नोट कर लेंगे एंड यू स्टार्ट वर्क ऑन दैट इज़ मोर देन इनफ. सात्विक चीज़ें करने से इतने डिफरेंसेस होने वाले हैं. लाइटनेस ऑफ द बॉडी, यू मेक श्योर अबाउट योर फूड. थर्ड पॉइंट इज़ एक्सरसाइज, बिकॉज जैसे जैसे आप फूड क्वांटिटी या फूड में चेंजेस करेंगे, योर बॉडी विल गेट योर विड्रॉल सिम्टम्स. और वो विड्रॉल सिम्टम्स में इनिशियल 3 days आपको ऐसा लगेगा कि मैंने क्यों बदला. आई वॉज हैप्पी विद द डाइट, बट 4th day ऑनवर्ड्स, वंस द 72 hours विल बी ओवर, आपके बॉडी में चेंजेस स्टार्ट होंगे एंड यू विल बी फाइन विद द लाइटनेस ऑफ द बॉडी. थर्ड पॉइंट इज एक्सरसाइज. फोर्थ इज लास्ट, आप जो भी काम दिन में करते हैं, बी स्टिक विथ योर वर्क, but simultaneously you stick with your routine also. सोने का समय, उठने का समय, एक्सरसाइज का समय, खाने का समय, don't compromise for anyone. Have you ever seen कोई बड़े व्यक्ति है, like some sages, they never compromise with the timings. That is discipline for the biology of the body, because our body is made up with the biological clock. जब हम कोई सात्विक फूड खाते हैं, जैसे मैंने सिर्फ वेजिस खाई एक दिन, अगर उस वेजिस में मुझे जैसे जैसे फीलिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मेरा बॉडी उसको हैबिचुएट होता जाएगा एंड वी विल बी इन दैट. वो सिचुएशन में हम बढ़ते जाएंगे कि हम उस चीज़ को जब तक नहीं खाएंगे, वी डिडंट फील हैप्पी. ओके, जैसे अभी हम समोसा खाते हैं,
बाहर निकल के या कहीं पे जाके हमारा मन संतुष्ट होता है या तन? मन, राइट? तन नहीं होता है, तन में एसिडिटी होती है। तो जब हम हमारे मन के लेवल पे उसको कन्वर्ट करने का चालू करेंगे, यू सी द डिफरेंस, योर बॉडी personality will be changed completely. Your nature will be changed completely. You will be soothed by the nature. You will work for the others. You will work for the society that has adopted by the only lifestyle of the sattvic food and some exercises. Last point is, आप जो भी यहाँ है आज सात्विक आहार पे कुछ ना कुछ जानने आए हैं। मेरे लिए सिर्फ एक काम करना और खुद के लिए ज़्यादा एक काम करना। यहाँ से जाने के बाद जैसे सुबोध सर ने भी बताया था कि गूगल बाबा है हमारे पास। यू जस्ट गो टू द गूगल एंड राइट डाउन अबाउट योर profiles and your routine. Okay, now we have a AI chat, right? Write down your routine. It will give you a complete lifestyle modification on AI. But that doesn't mean you will follow. Okay, because human sense are always be different than AI. Okay, if I am touching to someone, that AI cannot work. That AI cannot do also. But जैसे 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 उस चीज़ों में आप आगे बढ़ेंगे, आपको एक रियलाइजेशन होगा वेयर आई वॉज मेकिंग अ मिस्टेक, और वो मिस्टेक रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है. सो नाउ आई एम कंक्लूडिंग माई लेक्चर. आई होप सो कि कोई सोया तो नहीं है, आई एम जस्ट सीइंग दैट. बट फाइंड आउट अबाउट द सेल्स, टिश्यूज एंड द डाइट. You will see the difference of complete concept of vihar and ahar. And I sincerely thanks to Kaivalya Dham to invite me and give me a chance to share some insights. Lots of insights are that some insights I have shared with you only on cells, and you try for it. You gain a knowledge for yourself, not for the society first, and you work on that. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Kushan, for really simplifying the element of sattva and bringing action points, like how we can bring that element of sattva through certain, though difficult, but essential changes in our life for the health, not just for us, for the future, for the generation coming ahead. Thank you, sir. And with that, now I request Dr. Harish Shetty ji to take the dais. And Shetty ji has beforehand told me, look, Mamta, everybody's talking about ahar. I have to take, and I want to take Sattvic Ahar to a different dimension. So let's hear him for that. गुड मॉर्निंग. कैसे आप लोग? ठीक है. तो आज सात्विक आहार, आहार वेदा, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फूड, ब्रह्म भोजन, गुजराती भोजन, साउथ इंडियन भोजन, भोजन 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 भोजन, वैरायटी ऑफ भोजन. बट वाई वी ईट. सुबह उठ के जानते हैं कि सुबह उठ के क्या पूछा आप लोग ने? आज खाना क्या है? खाना क्यों है बोल के पूछोगे ना तो शरीर अच्छा हो जाएगा. सुबह उठ के कहीं जाना है तो पहला सोचते किधर खाना खाएंगे. कोई फंक्शन में जाओ, वहाँ दूल्हा दुल्हन अच्छा लगता है, डेकोरेशन अच्छा है, लेकिन खाना अगर बेकार है तो इतना कोसते हम कि उस फंक्शन को कभी याद नहीं करते. सो फूड इज़ सो इम्पॉर्टेंट. सो इफ फूड इज़ सो इम्पॉर्टेंट, वाई आर वी नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट, हाउ टू इम्प्रूव आवर हेल्थ. आज नेचर जो है वो खराब हो रहा है. आज ये बिल्डिंग जो है बाजू में, ये 4 तत्वों का बना हुआ है. क्या क्या? सीमेंट, ईंट, रेत और पानी. सीमेंट कच्चा, ईंट कच्चा, रेत कच्चा, तो ये इमारत कभी बन पाएगी? उसी तरह हमारा शरीर कितना तत्वों का बना हुआ है? हवा, पानी, अग्नि, वायु, आकाश. नहीं, हवा, पानी, अग्नि, मिट्टी और आकाश. बराबर.
तो अगर ये 5 तत्व का बना हुआ शरीर है जिसमें से 3 तत्व जहरीला हो रहा है, हवा, पानी और खाना, हम किस तरह से स्वस्थ रहेंगे? आहार बाद में की बात है, पहले शरीर जिस तत्व से बना हुआ है उस तत्व को अगर हम खराब करके हम कहेंगे कि हम स्वस्थ रहेंगे, इज इट पॉसिबल टू लिव? सो टुडे वी हैव टू इम्प्रूव आवर एनवायरनमेंट फर्स्ट। हम जब स्कूल जाते थे कभी वाटर बॉटल नहीं लेके गए। वी हैव नेवर टेकन वाटर बॉटल टू स्कूल। देयर वाज अ टैप रनिंग इन द स्कूल एंड वी यूज्ड टू मेक अ हैंड अ कप एंड वी यूज्ड टू ड्रिंक वाटर। टुडे नोबडी डज दैट। टुडे वी आर स्कैर्ड ऑफ water. Today we are looking out for organic food. Our parents never knew something called organic. We are looking out for purified air. अभी किसी ने बोल रहा था कि प्यूरिफायर लगाया रूम के अंदर. So where are we reaching? Why are we calling it a developed city or a developed nation? When we are destroying our basics, air, water and food, how are we going to develop in the future? We are talking about fast trains, fast planes, fast roads. What are we going to do with our body with that? आज शरीर में दर्द है, डर है, क्या बचा हमारे लिए? किस बात के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? So the first thing we have to understand is that we have to balance nature first. If you go to the doctors, they will tell you that because of imbalanced lifestyle, your body is ill. But what is the imbalance? Imbalance is only this, lifestyle. What is the lifestyle? हमको कैसे पता चलता है? डायबिटीज, ब्लड, हार्ट प्रॉब्लम, लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रॉब्लम, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी प्रॉब्लम, किडनी फंक्शन टेस्ट, हर प्रॉब्लम का पता चलता है ब्लड से. तो मैं आई एम सेइंग दैट डोंट चेक एनीथिंग बिलो द नेक, दिस 6 inches. योर लाइफस्टाइल इज हियर. फूड, ब्रेथ, स्लीप, थॉट्स, कर्मा. When you improve your lifestyle here, body automatically gets better. तो हमको क्या करना है? फाउंडेशन को ठीक करना है. That is air, water and food. I have an initiative called होश, कि हम होश में नहीं है कि हमको चाहिए क्या. So full form of होश is helping our society heal. A foundation, अम्बा गोपाल फाउंडेशन, मेरे माँ बाप के नाम पे मैंने शुरू किया. और मैं जगह जगह जाकर फार्मर्स लोग के पास जाकर कहता हूँ, उनको पता है कि केमिकल जो है, जो हम स्प्रे कर रहे हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वो ख़राब है. इसके लिए अपने लिए अलग उगाते हैं और बेचने के लिए अलग उगाते हैं. सो मैं बोलता हूँ अन्न देवता, हमारे अन्न देवता, अगर फार्मर्स नहीं थे तो हम आगे नहीं बच सकते थे. क्योंकि माँ बाप ज़िंदगी दे सकते हैं, लेकिन पालन पोषण जब तक फार्मर का खाना नहीं आता है, हमको पालन पोषण नहीं कर सकते थे. तो है अन्न देवता, लेकिन अन्न देवता जहर डाल के नहीं देना चाहिए. आज मैं PIL डाला हूँ कि साफ़ हवा, साफ़ पानी, साफ़ खाना दो, बाकी हमको कुछ नहीं मिले. अभी का डेवलपमेंट 500 साल के लिए चल सकता है, लेकिन जिस हिसाब से कैंसर फैल रहा है हवा और पानी और खाने की वजह से, इफ़ वी डोंट डेवलप दैट, लाइफ विल बी वेरी मिजरेबल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. लाइफ में 5 प्रॉब्लम है: अन्न, मन, तन, धन, संबंध. ये 5 के सिवाय छठवां सब्जेक्ट नहीं हमारे पास. अन्न अच्छा तो मन अच्छा, अन्न और मन अच्छा तो तन अच्छा. तो शुरुआत अन्न से करना पड़ेगा. अन्न मतलब हवा, पानी, खाना, तीनों चीज. जब तीनों चीज अच्छा है तो अपने आप मन अच्छा हो जाता है. मन को अच्छा करने के लिए आज स्ट्रेस क्यों इतना है? क्योंकि जो हमारे हाथ में नहीं है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, वो है स्ट्रेस. लोगों को मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है. 50 साल 60 साल पहले मेडिटेशन का इतना ये नहीं था, क्योंकि सब प्यार से जीते थे, सब खुशी से जीते थे, सबको अपनाते थे. तो इसके लिए स्ट्रेस, मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं थी. आज मेडिटेशन की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये कम हो गया. हमारा जो आत्मा का जो शक्ति है वो है प्यार, शांति, खुशी, प्रेम, आनंद. वो शक्ति कम हो गई है, इसके लिए मेडिटेशन करना पड़ता है. जब आप प्यार में हैं आप मेडिटेशन कर रहे हैं.
जब आप खुशी में आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो मन को इन शक्तियों से बढ़ाओ। मेडिटेशन करके लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं बैठ नहीं सकता हूँ। आप क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि आपके मन में प्यार कम है, आपके मन में खुशी कम है। तो इस खुशी को बढ़ाओ। खुशबू, फूल में खुशबू है तो फूल का वैल्यू है। तो इस तरह से मन को इम्प्रूव करो। स्ट्रेस, वो चीज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो परमात्मा के कंट्रोल में है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। अपना कंट्रोल, अभी जैसा कोई जिम जाता है तो वो देखता है कोई 100 किलो उठाता है, लेकिन उसकी पास ताकत 20 किलो का है, वो उसी दिन से 100 किलो के बारे में सोचने लग जाता है। नहीं, वो 100 किलो पहुंचने के लिए उसको 6 महीने साल लगे होंगे। यू विल ऑल्सो टेक दैट मच टाइम, सो डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ फॉर एनीथिंग। तो अन्न अच्छा, मन अच्छा, तन अच्छा। और जब अन्न अच्छा, मन अच्छा, तन अच्छा, आपके अंदर अच्छी ऊर्जा आएगी और अच्छी ऊर्जा के साथ आप खूब मेहनत कर सकोगे। एंड व्हेन यू वर्क हार्ड you attract lot of wealth, and when you attract lot of wealth you become famous, and you become everybody wants to connect with successful people. So this is 5 things that is important. So आज से सबसे ज़्यादा मांगना शुरू करो नेचर को इम्प्रूव करने के लिए, हवा, पानी और खाना। क्योंकि शरीर में डर और दर्द से जीना बेकार जीना है। शरीर में दर्द और डर हो तो हमारा ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रहा है। हम अगली जनरेशन को क्या दे रहे हैं? दर्द और डर किस बात के लिए? और बचा क्या है अभी? अगर शरीर भी ठीक नहीं है, स्ट्रेस भी है, हेल्थ भी अच्छा नहीं है, व्हाट आर वी गोइंग टू गिव टू द नेक्स्ट जनरेशन? सो ब्रिंग अ बैलेंस इन द नेचर. व्हेन यू बैलेंस द नेचर, योर नेचर विल इम्प्रूव, एंड दैट विल ऑल्सो बैलेंस, एंड लाइफ विल इम्प्रूव. थैंक यू सो मच. Thank you, sir, for putting emphasis on not just सात्विक आहार, पर सात्विक वातावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है उस आहार को अपने परिप्रेक्ष्य में लाने के लिए. Now we would move ahead, and now we would request our very own Sir Tejinder Singh Sabharwal ji, I'm really sorry, to take the mic and share his point of view on the same topic. Thank you, sir. I am Tejinder Singh Sabharwal, founder chairman of ICE College of Hotel Management. Basically, we got autonomy from Mumbai University. So, अभी new education policy जो आया है, उसमें there are various baskets. Vocational subject का basket है. तो we were planning to put सात्विक आहार plus vegan food as the choice for the subject. तो इतने में इनका फ़ोन आ गया, तो मैंने बोला मेरा काम तो आधा इन्होंने कर दिया. और जब मुझे इन्होंने किताब प्रेजेंट की तो मैंने बोला मेरा सिलेबस भी आ गया. तो बेसिकली वी वांट टू इंट्रोड्यूस, क्योंकि ये कितनी भी बातें करो, इम्प्लीमेंट तब होगा जब आम आदमी, बच्चों तक ये बात पहुँचेगी. और ये सारी बातें सुनकर 3 पॉइंटर मैंने निकाले हैं जो सब लेकर जाएं तो काम आसान हो जाए. पॉइंट नंबर 1, खाओ वो जो हजम कर सको. खाओ वो जो हजम कर सको. खाओ उतना के हजम कर सको. खाओ उस वक्त के हजम कर सको. राइट? तो दिस इज अ वेरी सिंपल लैंडमार्क कि वही खाना है जो सर ने बताया है. जीवन जिसमें हो फूड, वही खाना है. ये बेसिकली सात्विक फूड मेरे जहन में तब आया जब मैं यूट्यूब चैनल में नवजोत सिंह सिद्धू जी का इंटरव्यू देख रहा था. तो उनकी वाइफ को कैंसर था, तो नाउ कैंसर मुक्त हो गई वो, लेकिन उन्होंने जो फॉलो किया आहार, उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की. मैं चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स सब देखें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस. उसमें सात्विक आहार की उन्होंने बहुत सारी बातें की. तो अल्टीमेटली खाओ वो जो हजम कर सको, खाओ उतना जो हजम कर सको, और खाओ उस वक्त जो हजम कर सको. अब खाने के आधे घंटे तक हमको पानी नहीं पीना है. ये हम तक बात
पहुंचने तक 40 साल हो गए थे, राइट। तो मैं ये चाहता हूं हर एक बच्चे तक ये बात जाए, और ये ज़रूरी इसलिए है कि हमारे अंदर एक प्राणवायु है, वो दो काम करती है। एक, ही विल डाइजेस्ट फूड, एक तो फूड डाइजेशन का, एक शरीर को रिपेयर करने का। आप कभी भी डॉक्टर के पास जाओ, वो दवाई के साथ बोलता है आहार बहुत लाइट लेना। क्यों? वो दवाई नहीं काम करेगी, वो प्राणवायु काम करेगा। तो अगर हमने एक टाइम खाना खाया, उसके हजम होने से पहले अगर दूसरा खा लिया, सो प्राणवायु को मौका ही नहीं मिला आपकी बॉडी रिपेयर करने का। तो 7:30 शुड बी योर लास्ट मील, राइट, सो दैट विदिन 6 to 7 आवर्स ये डाइजेस्ट हो जाए, और बाकी का वक्त ब्रेकफास्ट से पहले टोटल गैप 16 आवर्स का होना चाहिए, 7:30 और 12 तक। 12 को फर्स्ट ब्रेकफास्ट लो, तो अल्टीमेटली होगा क्या, योर बॉडी विल गेट टाइम टू रिपेयर। प्राणवायु को वक्त मिलेगा कि खाना हजम करने के बाद आपको रिपेयर करने का वक्त मिलेगा। अब यूएस में अब एक पेपर पब्लिश हुआ है, और अल्टीमेटली कैंसर दे आर ट्रीटिंग बाय उपवास, राइट। तो फास्टिंग से कैंसर वो लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राणवायु को मौका मिलता है बॉडी को रिपेयर करने का। तो मैं ये अभी मेरा जो है ऑब्जेक्टिव टू इंट्रोड्यूस एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्सिटी सिलेबस, तो वहाँ पे एक और अड़चन थी कि आई नीड अ पैनल, राइट। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का पैनल बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे वो पैनल भी मिल गया, राइट। तो मेरे सारे काम आसान हो गए, और आपके भी हो जाएंगे अगर आप फॉलो करोगे सात्विक आहार। थैंक्स। Thank you, sir. I think Tejinder sir has really shown that he really deals with youngsters, all the young minds, and it's very important that when you reach out to them, how to simplify things and how to put it in a very layman language, and that's how he's really simplified the concept. क्या खाना है, कैसे खाना है, वो खाना है जो हजम हो सके. With that, I thank all our panelists for their opening remarks. And now we will move ahead for the question answer sessions. I request if there are any other questions from our audience side, I request my volunteers to just collect those questions and bring those to us. In the meantime, I open a question to Dr. Kushan Shah. As we're talking about Sattvic food, how scientifically this can be explained, how food is affecting our brain in terms of what we think, what we do, and what we decide. So what happens, what is the background behind it, what is happening in the back? If you could just throw some light on that for our students and participants. Yeah, Thank you. Thank you. I'll try to answer in Hindi first, okay, because थोड़ा समझ में बहुत easily आ जाएगा सबको. Basically, we have a two component. That is, one is a man and second one is a brain. Okay, the Sattvic Ahar clinically not much satisfied our man, but it helps to regenerate the neurons in the brain. That is two component. So Sattvic Ahar is palatable, but लोगों के व्यक्तित्व में और मन में ऐसा है, सात्विक आहार यानी टेस्टलेस एंड द ब्लैंड डाइट. ओके, टेस्टलेस एंड अ ब्लैंड डाइट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. व्हाट यू आर हैविंग विद द लेसर प्रिपरेशन, दैट इज सात्विक आहार. ओके, सो योर मन कैन बी satisfied if you are ready. The first components are over. The second component will be brain. How it works in the brain side, right? Our brains has a neurons. जो हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो क्या है, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स वीक हो गए हैं तो हम थक जाते हैं. काफ़ी सारे डिसीज़ होते हैं, जैसे आपने सुना होगा अल्जाइमर्स है, डिमेंशिया है, और फॉरगेटफुलनेस. इन अ सिंपल वे इट इज़ अ फॉरगेटफुलनेस. तो जैसे ही हमारे शरीर के अंदर सात्विक आहार क्या करता है, आपके ब्लड में
ऑक्सीजन और वाटर की मात्रा को बढ़ा देता है, पानी और ऑक्सीजन की मात्रा। जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन और पानी की मात्रा बढ़ती है, वो सीधा ब्रेन में जाता है उसका कंपोनेंट, और वो न्यूरॉन्स को रिहाइड्रेट करता है विद द ऑक्सीजन एंड वाटर एंड फुल फ्लश ऑफ द ब्लड। जैसे ही न्यूरॉन्स एक्टिविटी बढ़ती है, आप में एक्टिवेशन स्टार्ट होता है। जैसे इसीलिए मैंने एक लेक्चर में एक ही बात बोली थी कि जैसे वंस यू शिफ्ट टू द सात्विका, फीलिंग ऑफ लाइटनेस विल बी स्टार्ट। ये जो फीलिंग ऑफ लाइटनेस है वो आपके न्यूरॉन्स करते हैं ब्रेन में। जैसे ही न्यूरॉन्स हल्के हो गए, उनको फुल फ्लेज ब्लड फ्लो मिल गया, वो अपनी एक्टिविटी लाइटर वे में स्टार्ट करेंगे, और आपको फील होगा कि आपको थकान कम लग रहा है, अनयूजुअल टाइम पे नींद कम आती है, और फ्रेशनेस, हम रिफ्रेशमेंट्स बोलते हैं, राइट। अभी हमने कुछ रिफ्रेशमेंट ड्रिंक लिया, क्यों? क्योंकि मेरे लेक्चर में या सर के लेक्चर में कोई सो ना जाए, राइट, इसीलिए नहीं है। रिफ्रेशमेंट ड्रिंक कंटेंट्स व्हाट? एंटीऑक्सीडेंट। और जैसे ही सात्विक आहार के एंटीऑक्सीडेंट्स आपके ब्रेन न्यूरॉन्स तक पहुंचते हैं, क्लिनिकली इट विल स्टार्ट, इट वर्क्स टू इंक्रीज द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एज वेल, H2O जो पानी में रहता है। तो ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल आपके फ्लशी ब्लड के साथ मिलके न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर। दिस इज द वर्क ऑफ द सात्विक आहार इन द ब्रेन। रिगार्डिंग मन, आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट। ओके, या। Thank you, sir. Taking from your answer just now, Harish sir, many people think that अरे सात्विक खाना मतलब बोरिंग खाना ही खाना पड़ेगा, उबला शायद कम उबला खाना पड़ेगा, एक ही खाना पड़ेगा, एक ही टाइम पे खाना पड़ेगा, like this misconception of sattvic food being boring. Why I'm asking this question to you, because I know you have Ahar Veda restaurant as well, which has even the order capacity, and also would you like to debunk this mystery? अगर सिर्फ खिचड़ी खाने को बोला तो 8-10 दिन करके छोड़ दोगे। सो फूड, मैंने कहा ना, इतना इम्पोर्टेंट है कि खुशी एक ही है, सबसे बड़ी खुशी है जीने के लिए, खाना। सो टेस्टी फूड, जब मैं सीखा ये, तो मुझे बोला गया हेल्थ और टेस्ट विल नॉट गो टुगेदर। मैंने कहा कि अगर हेल्थ और टेस्ट नहीं है तो फिर नहीं आ रहा है ना, टेस्ट नहीं है तो फिर जीना किसके लिए? एक ही तो खुशी है। सो वी हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ फूड एट आहार वेदा, जहाँ पर हम बिना दूध का खीर बनाते हैं, बिना दूध का छाछ बनाते हैं, पीनट का दूध का दही वड़ा बनाते हैं। सो वेराइटी ऑफ फूड इज़ पॉसिबल विदाउट ऑयल, शुगर, मिल्क एंड ग्रेन्स। जैसे सर ने बोला ग्रेन्स नहीं खाने का, लेकिन मिलेट्स है, वेराइटी ऑफ मिलेट्स है, राजगीरा है। तो इस तरह से अलग अलग ग्रेन प्रोडक्ट से हम नाश्ता बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं। हमारे वहाँ आप आएंगे तो अबाउट 300 डिशेस है, जहाँ हम पिज़्ज़ा भी बनाते हैं, अभी बच्चों के लिए बर्गर भी बनाते हैं। सो खाना 4 साल लगा मुझे इस प्रयास में। जब मुझे बोला गया दूध नहीं चाहिए, शक्कर नहीं चाहिए, तेल नहीं चाहिए, सो मैं बोला किस तरीके से हम इसको बिना डाले स्वादिष्ट बना सकते हैं। आप लोग तो अन्नपूर्णा हो, आप लोग को खाना बनाने को आता है, तो बस ये 3 चीज़ बिना डाले आप लोग कोशिश करिए, शुरुआत कीजिए। ये 3 चीज़ लाना नहीं, तेल, शक्कर, दूध। बिकॉज दूध बेसिकली, आज मुझे पूछा गया था कि कृष्ण के टाइम से चली आ रही प्रथा आप बंद क्यों कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण के टाइम पे दूध गाय घास चरती थी और केमिकल नहीं था, पेस्टिसाइड नहीं था, गाय को स्टेरॉइड्स नहीं दिया जाता था। आज ये सब हो रहा है, 6-6 महीने का पैकेजिंग हो रहा है, इसलिए दूध का क्वालिटी अच्छा नहीं है। सो इसके लिए हम दूध बना करते हैं, शक्कर बना कर रहे हैं, कंप्लीट केमिकल है, ऑयल बना कर रहे हैं, और ग्रेन्स जैसे सर ने कहा, राइस, व्हीट, जवार बाजरा फिर भी ठीक है, राइस एंड व्हीट स्पेशली वो बना कर दे। तो इसके अलावा भी हम स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। आप मेरे वेबसाइट पे आइए और आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सर। तेजिंदर सिंह सर, देयर इज़ अ क्वेश्चन कि हम किस तरह से सात्विक आहार कॉन्सेप्ट को पब्लिक सेक्टर में लेकर आए, किस तरह से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, कैंटीन्स में, स्कूल्स के मेस में, स्पेशली फॉर आवर यंगस्टर्स, किस तरह से हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, पॉलिसी लेवल पे हम किस तरह के चेंजेस ला सकते हैं या
encourage कर सकते हैं if you have with you. हेलो, तो सात्विक आहार अगर हम रेस्टोरेंट में सर्व करेंगे तो कोई रेस्टोरेंट में आएगा नहीं, राइट? कैंटीन में सर्व करेंगे तो कैंटीन में कोई आएगा नहीं। लेकिन मेरे पास एक फॉर्मूला है। न्यू ईयर के दिन मैंने अपने घर में पार्टी रखी थी, सारे अपने रिश्तेदारों को बुलाया और उन्हें खाना खिला दिया। खिलाने के बाद बताया ये सात्विक है। आप सात्विक बनाओ लेकिन बोलो नहीं ये सात्विक है, राइट? इसी तरह से दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो उनको पसंद आया और उन कैलोरीज उसमें नहीं गई। तो हम तो एक रेस्टोरेंट अभी स्टार्ट करने वाले हैं, कैलोरी काउंट, राइट? कैलोरी काउंट के करके खाना बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर हमने बता दिया कि सात्विक है तो उनके दिमाग में आ जाता है कि ये टेस्टी नहीं होगा, वो टेस्ट भी नहीं करेगा। वो टेस्ट करेगा तो उसको टेस्टी लगेगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही हमने दिमाग में डाल दिया है, राइट? तो ये खाने के बाद वो पूछे कि ये टेस्ट काफ़ी बढ़िया था, एक क्या डिफरेंस है पहले वाले खाने और इस खाने में? तो हमने बोला ये सात्विक है, इसमें प्याज नहीं डाला, इसने ऑयल नहीं डाला। तो इन दिस वे वी कैन डू इट। Thank you, sir. So first creating the awareness and we can say the inclination towards the food. If any of you would like to comment on that, you're most welcome. Okay, thank you, sir. So now the next question is, sir, in markets we have so many supplements and it's open to any of you guys, sirs. There are so many supplements, nutrient supplements that have been now generally prescribed, and even over the counter they are available. And if you see, some of them are like organic supplements, herbal supplements. How good, how sattvic actually they are, and how, whether we should use them in moderation with consultation or not at all. What is your opinion on that? Thank you. So for this question, I've got a question. Did our parents knew anything called protein, vitamin supplements? If they could survive thousands of years, why in this 30 years we are looking out for supplements? Is because that's what I'm telling, that food is not giving us the requirement nutritions. There's no nutrition in the food. That is why we want to have supplements. So ask the government to give us food that has got all the nutrition. So then you don't need to eat supplements. Thank you, sir. So many of our students and participants, Kushant sir, are interested in knowing the concept of fasting and whether eating good food is more important or fasting is more important. Actually, both are important, but in a different manner. If you have a disease, you go for the fasting. If you want to lead a healthy lifestyle, go for the sattvic food. So यहाँ पे दो चीज़ों को हमें अलग कर देना है। अगर हमें हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाना है, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, कोविड टाइम में इम्यूनिटी हमने बहुत सुना है। आई हैव चेक सो मेनी पेशेंट्स कि गरम खा खा के उनको अल्सर हो गए अंदर और कोविड भी हो गया। ओके, सो दैट डजंट वर्क ऑन दैट वे। क्लिनिकल्स ऑलवेज वर्क ऑन डिफरेंट वे। तो जब हम क्लिनिकल्स की बात करते हैं और थेरापीज़ की बात करते हैं, फास्टिंग किस कंडीशन में दी जाती है? जब आपको ऑटो इम्यून कंडीशन है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है और आपको कोई भी क्रॉनिक कंडीशन है जो कोई भी चीज़ों से नहीं ख़त्म हो रही है, देन यू जस्ट गिव अ रेस्ट टू द बॉडी विल गिव यू अ रिस्पॉन्स इन अ हेल्दियर फॉर्म विच इज़ कॉल्ड एज अ ऑटोफेजी। रीड ऑटोफेजी इन गूगल अगेन, यू विल गेट अ नॉलेज ऑफ ऑटोफेजी। जैसे ही ऑटोफेजी स्टार्ट होगा, आपके सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन बंद हो जाएंगे। even though in the cancer cells can survived and killed by the autophagy physiological changes, because it is called in a medical term phagocytosis. जैसे ही गलत बैक्टीरिया, गलत वायरस, गलत फंगल इन्फेक्शन शरीर में होते हैं, अपनी इम्यूनिटी जैसे जैसे बढ़ने लगती है, वो अपने आप सप्रेस होते जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। दैट इज़ फास्टिंग। अबाउट सात्विक, जैसे हमने डिस्कस किया, सात्विक के एक ही कॉन्सेप्ट पे आप चलिए, जितना अच्छा खाना खा सको और आपके मन के विरुद्ध का खाना खा सको, उतना आपके लिए अच्छा है। वो है सात्विक। सिंपल फॉर्म में जितना आपको पसंद आने वाली चीज़ें हैं, थोड़े दिन उसको साइड में रख लीजिए और जो नहीं पसंद आने वाली चीज़ें सब चालू कर दीजिए।
अभी मैं किसी को बोलूँगा आपके ऐश गॉड खाओ, दूधी भोपड़ा खाओ, बोलेंगे क्या क्या खाना है। ओके, अब गॉड्स चालू करो, जितने गॉड्स है आपको हेल्प करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको पनीर टिक्का मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, एवरीबडी विल रेडी एंड हिट। ओके, अगर अभी लंच में अगर भोपड़े का सब्जी बनाया है, वो काफ़ी सारी बच जाएगी, तो वो चालू करो जो आपको पसंद नहीं है। दैट विल गिव यू अ इम्प्रूवमेंट फॉर द लॉन्गर रन। फास्टिंग फॉर थेरापीज इन शॉर्ट, एंड सात्विक आहार फॉर द लीडिंग अ गुड लाइफ। ओके, या Okay, sir, but that also leads us to a question that at times, even in chronic conditions, sometimes people take health in their hand in terms of fasting है तो मैं खुद ही fasting करूँगा, like you know they don't go for under guidance or under observation. So I think we should also clear some pointers on that way also. Can we do fasting on our own and to what extent? नो, बिकॉज द स्पिरिचुअल फास्टिंग हमेशा डिफरेंट रहता है। जो हम धर्म के आधार पे करते हैं वो अलग है, और थेरापेटिक फास्टिंग अलग होता है। धर्म पे आधार पे होने वाली क्रियाएं और फास्टिंग वो हमारी संतुष्टि के लिए है, और जो फास्टिंग हम रोग प्रतिकारक शक्ति या रोग मुक्त होने के लिए करते हैं वो आपके अंडर गाइडेंस ही होने चाहिए, अंडर गाइडेंस ऑफ डॉक्टर ही होना चाहिए। बिकॉज फास्टिंग के बहुत सारे प्रकार है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि पानी का ही उपवास करना है। आप जूस पे भी रह सकते हो, आप फ्रूट पे भी रह सकते हो, आप वन टाइम मील पे भी रह सकते हो। इट डिपेंड्स कि आपके डॉक्टर को कितने फास्टिंग की आवश्यकता लगती है। सो डोंट गो ऑन द रैंडम थॉट्स, रैंडम व्हाट्सएप मैसेजेस, इवन ऑन द AI। आप डॉक्टर को कंसल्ट करो एंड यू स्टार्ट। ओके, या Thank you, sir. Harish, sir, there is a question. Why we should remember God's name before eating, as we have this in our tradition? Why is it important? सात्विक खाना तब होगा जब उसमें सात्विक एनर्जी होगी। सो गॉड है, उससे पहले बहुत सारे लोग ने आपको वो खाना आप तक पहुंचाया है। कितने जन ने धूप में खड़ा रह के मेहनत की होगी, कितने लोगों ने बारिश में कीचड़ में काम किया होगा। उन सारे लोगों को याद करो और उसके साथ भगवान को याद करो, तो उसमें एक अच्छी ऊर्जा होगी, और उस अच्छी ऊर्जा की वजह से आपके अंदर वो खाना एक अच्छा ऊर्जा बनेगा। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है नॉट ओनली गॉड बट हिज होल क्रिएशन। सबको धन्यवाद करके आप खाना खाना। आप टीवी चालू करके, जैसा किसी सर ने कहा, टीवी चालू करके म्यूज़िक चालू करके मत खाना, लेकिन ये सब बंद करके, जब गाड़ी हम पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी को बंद करते हैं ना, उसी तरह हमारा माइंड को स्विच ऑफ करने का और प्रार्थना करके खाएंगे तो वो खाना सात्विक अपने आप हो जाएगा। थैंक यू। Thank you, sir. And just continuing on that point, you once mentioned that being healthy is being balanced. When you are out of balance, you are unhealthy, and healing happens on its own. We have to just bring ourselves to the balance. What does it really mean, and if you could just explain that a bit? बैलेंस इज बेसिकली, आज एक ही बैलेंस के पीछे हम पड़े हैं, बैंक बैलेंस। बाकी सब इम्बैलेंस है, रिश्ता इम्बैलेंस है, खाना इम्बैलेंस है, लाइफस्टाइल इम्बैलेंस है। सो आई फील दैट वी शुड गेट बैलेंस टू एवरीथिंग। जैसा हड्डी टूटता है, डॉक्टर उसको एक बैलेंस पे लेके आते हैं, बट आफ्टर यू गेट इट इनटू अ बैलेंस, द बॉडी हील्स द क्रैक एंड द फ्रैक्चर इटसेल्फ। नो डॉक्टर्स हील इट। So everything, if you get into a balance, automatically life will be good and healthy. Thank you, sir. There is one more question for Kushan, sir, to emphasize on the 4 pointers that you just made about Satvik Ahar. In the beginning, I think, I have that. Maybe I can just remind you that. I think Satvik food changes, exercise, and working on the routine, not the hard work. And if you can just elaborate those 4 points again. सात्विक फूड जो है वो लाइफ का एक वन ऑफ द पिलर है। इट्स नॉट अ कंप्लीट पिलर। हम सिर्फ खाना खा के जिंदा रहते हैं क्या? नहीं ना, ऑक्सीजन भी लेते हैं। फॉर दैट वी नीड एक्सरसाइज, कि हमारे सेल्यूलर लेवल पे, हमारे कोश में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े। इसीलिए तो हम भागा दौड़ करते हैं सुबह उठ के ना। अभी सुबह मैं आ रहा था, यहाँ पे सब वॉकिंग कर रहे थे। अभी कोई और जगह जाओगे तो लोग सुबह सुबह जिम में चले जाते हैं। वाई वी आर गोइंग टू द जिम? फॉर बिल्ट अवर मसल, और वी आर गोइंग फॉर टू इंक्रीज द सैचुरेशन ऑफ द ऑक्सीजन।
इंक्रीज द सैचुरेशन ऑफ द ऑक्सीजन। हमें सिर्फ वो चीज़ मालूम नहीं है कि हम क्यों जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि वी आर बिल्डिंग अवर बॉडी और हम उसको शेप दे रहे हैं, दैट इज़ ओके। इवन द योगा में भी एक्सरसाइज के पार्ट है, लाइक अ हठ योगा, बट राज योगा भी है, राइट? तो राज योगा, हठ योगा दोनों अलग पैरामीटर पे जाते हैं। सो एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट टू increase your oxygen level in the body, first thing. Second point, sattvic ahar is important for your cellular destruction to be stopped. आपके कोशों में नई ऊर्जा भरने के लिए सात्विक आहार की आवश्यकता पड़ेगी। And third parameter was routine versus hard work. See, routine versus hard work. What is hard work? Nowadays, who will do the hard work? All are smart, right? All are smart. आप किसी को ये बोलो कि यहाँ से 4 कदम दूर चल के जाना है, nobody do that, okay? वो सोचेगा कि मैं कैसे उसको मंगवा लूँ यहाँ तक। So hard work and routine work. Routine work में 2 चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, which is under the label of biological clock. आपकी जो भी रूटीन है उसको डिस्टर्ब ना होते हुए आपको जो करना है आप करिए, विच गिव यू अ दैट मच ऑफ एनर्जी एंड दैट विल सेव योर एनर्जी बिकॉज यू आर पर्टिकुलर अबाउट योर लाइफ। जब तक आप अपनी लाइफ के कुछ कंपोनेंट फिक्स नहीं करेंगे आप हमेशा भागते दौड़ते रहेंगे। आप जिस दिन आपके वर्क पैटर्न, प्रोफेशनल पैटर्न को और पर्सनल पैटर्न को डिफरेंशिएट करना सीख गए, आप हेल्दी लाइफस्टाइल में आ चुके हैं। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पेशेंट्स ऑन द कंप्लेन ऑफ कि हम लोग घर पे जाके भी एक ही बात करते हैं काम की। क्यों? नहीं करनी चाहिए। जब तक आप उस चीज़ों को जो भी स्टिपुलेटेड आवर्स में होती हुई चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, योर माइंड विल नॉट बी रिलैक्स एंड दैट विल गिव यू अगेन stress hormone can be increased, you will disturb your sleep pattern, you will impair your exercise pattern, your food will be impaired। सात्विक भूल जाइए, तामसिक भी खाने की इच्छा मर जाएगी। ओके तो ये चीज़ें हमेशा हमें पैरामीटर बेस्ड करके ही काम करना चाहिए। तो ये 3 कंपोनेंट में एक चीज़ कॉमन है, क्या? हमें हेल्दी रहना है, तो ये तीनों करनी पड़ेगी। सात्विक आहार इज वन ऑफ द पैरामीटर, एक्सरसाइज सेकंड, एंड थर्ड is your biological clock you should follow. Yeah, thank you. Thank you, sir. Let's give them a big round of applause for our own very all prominent panelists. And I think what we have understood today is that when we say sattvic food, it really reaches to the other dimensions of beyond the food also, the environment, the very lifestyle, the very mindset that we have. And it's just not about picking what to eat, what not to eat, but it is also about what to do, what not to do, what to think, what not to think. And I think just keeping the sanity intact in today's life is the utmost important thing to follow. And I think if we really have to sum up the सात्विक भोजन, अगर कुछ भी समझ ना आए तो कबीर जी का एक दोहा है कि रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी मत ललचाओ जी। So with that sense of satisfaction and contentment, I think if we start living our life, we are already leading on the mark of sattva. So once again, we thank all our panelists once again, and thank you for being such a patient and beautiful audience. And over to Shania. Thank you. Thank you everybody. I think my takeaway from this particular panel discussion would be to make gods our gods if you want to lead a very healthy life. But then that's just me. Now, we request our panelists to move towards the dining area. And we request our wonderful audience to be seated for another 5 minutes for a few announcements. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Some of you might be aware of the Yogi Chef cooking competition, which celebrates creativity and health through Sattvic cuisine. Now, this competition has been simultaneously running, where so many of our culinary enthusiasts have been showcasing their skills in preparing Sattvic dishes. And Dr. Chef Kaviraj Khyalani, who is also a celebrity master chef,
author and academician, nutrition and well-being consultant, director Creative Cuisine International Mumbai, is the judge of the competition. Dr. Kushan Shah, senior naturopath who was just here in the panel discussion, will also be joining him as Yogi Chef jury. So should you have time during the lunch break, please visit the food display. Please take a left after you cross the main gate to see the dishes on display in the presentation area. Moving forward, at 2 p.m. we will have a memorable performance by internationally renowned humorous poet and environmental activist, Dr. Mukesh Gautam. This will be followed by our next panel discussion on the topic Satvik Ahar and mental health. Now, let us break for the sumptuous and Satvik Ahar. Please proceed toward the dining area for lunch and be back here by 2 p.m. for the next session, which will be a hilarious performance by Dr. Gautam. Thank you so much for being patient.